Assalamualaikum everyone. This is another online lecture for the course Object Oriented Programming. So I wanted to get in another coding practice session for dynamic memory allocation. Like I discussed in the previous lecture, मैं थोड़ा slow down हो रही हूँ with the topics ताकि if anybody has some problem catching up या कुछ previous topics आप लोगों को लग रहा है कि हमने थोड़े rush अंदाज में किए हैं, जल्दी किए हैं. So hopefully this will give you some time to catch up क्योंकि इस क्लास के अंदर भी I'm only going to be discussing जो हमने डिस्कशन बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. सो वेरी क्विकली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ये बात की थी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम प्रैक्टिकल कोडिंग कर रहे होते हैं वी डू नॉट वांट टू सेट फिक्स्ड मेमोरी फॉर आवर ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है. एंड फॉर दैट द रीजन फॉर दैट इज कि हमारी जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो हमेशा ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस लेती है क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जब आप लेट्स से कोई कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपने कोई नेम लेना है या इनपुट लेनी है फॉर नेम और या आपने इनपुट लेनी है फॉर लोकेशन एक्सेट्रा. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको कोई एक सेट स्टैटिक साइज देना पड़ता है फॉर द एरे. सो मे बी अगर लेट्स से इट्स अ नेम मे बी यू सेट द साइज एज 50 फॉर अ कैरेक्टर एरे और इवन अगर इफ इट्स अ लोकेशन जिसमें उन्होंने कोई लेट्स से कोई लेंथी एड्रेस डालना हो सो यू मे बी इवन सेट द साइज एज अ 100 का 150 का. So what that is doing is कि in most cases the name is not going to be as long as 50 character spaces and neither is a location ever going to reach let's say 200 character spaces. So what you are doing is you are basically wasting space on memory क्योंकि जाहिर है हमें कोई एक अंदाजन वैल्यू देनी पड़ती है तो हम अक्सर बहुत लार्ज वैल्यूज देते हैं ताकि हमारा कोई एरर ना आए व्हेन हम इनपुट ले रहे हो फ्रॉम द यूजर. So obviously in those cases we see that there is a lot of advantage अगर हम किसी तरीके से memory allocation की requirements पहले user से ले लें और फिर उसके मुताबिक हम during run time memory allocate कर दें. Okay, so where was I? हाँ जी. So in general, dynamic memory allocation is very useful for the same reason that we want to conserve space and we want to be able to choose on runtime कि हमें कितनी memory allocate करनी है for whatever object. ठीक है, तो इसी के context में हम आज एक code देख लेते हैं. ठीक हो गया. So again as always please do try coding alongside me ताकि अगर कोई questions हो तो आप मुझे interactive question session के अंदर पूछ सके, right? Okay, so let's start with a very basic sort of program. So let me just first write out the initial starting points. Okay, so let's write a program जहाँ पे हमारे पास option हो multiple different type of objects create करने के. So this is the same thing जो आपने assignment 2 task 2 में की है जहाँ पे you wanted to ask the user कि अगर आपने different type of objects किस type का object create करना है and then when you get the input from the user then you create that particular object only. ठीक हो गया. So जैसे कि task 2 के अंदर आपने different type of vehicles create करनी थी. So what if we were able to ask the user कि आपने क्या एक yacht बनानी है या आपने एक van create करनी है and then only that specific type of object was created. So we could have let's say a class A. ठीक हो गया जिसके अंदर I have let's say an integer type data member है and इसके लिए let me write some constructors. ठीक हो गया. So I have एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आई एम ओनली गोइंग टू राइट अ सी आउट स्टेटमेंट के ताकि मुझे पता चले कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है. सो दिस इज सिंपली लेट्स से ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए ओनली हैज एन इंटीजर डेटा मेंबर. ठीक हो गया. एंड राइट. So next I'm going to write a setup function. So for instance अगर आपने कोई एक class A का object create किया है I want to be able to set it up and setup functions का again return type क्या होगी void type होगी, right? Because I am not returning anything to my main function. I am simply trying to set the values of the variables जो class A के अपने data members हैं. ठीक हो गया.
So let's say here I can take an input from the user. I can ask the user, let's say enter integer value for a. ठीक हो गया. And once I have that, I can simply read in that value. ठीक है, तो इसके अंदर मैं simply setup कर रही हूँ, user से input ले रही हूँ, and that is it for my setup function. And let's say I also have a display function. So I have void display. Let me correct this. Right, so I have a display function, which as all display functions वो simply क्या करेगा, display कर देगा value of my integer. So integer value for class A जो है वो क्या है, वो A है. ठीक हो गया. Right, so this is simply my display function और इसके बाद I am simply ending my class. इसके साथ हम let's say एक और class declare कर लेते हैं, यानी कि let's say I have another class B which is slightly different in the sense कि अब this could be anything, right? So for instance, if this was your assignment task 2, this could have been another type of vehicle, right? So this is के अंदर मैंने class B कही है और इसका हम data member different ले लेते हैं just so that we know कि ये completely different type of class है. Data member भी इसके अंदर एक ही है जिसको let's say which is a name type data member. For this as well, I will need to write constructors. So the constructor for B again, because I want to know किस वक्त जो है वो constructor call हुआ है for B. So again, I will also include cout statements which say, let's say B object only string data member. ठीक हो गया, and I'm simply ending my statement here. So this is simply my constructor. Let me just indent it correctly. Right. Next, I need a setup function for my B class. So again, I have void setup for this class, or setup के अंदर again I want to take user input. So that would be a cout statement which says enter name. ठीक हो गया. And as I am reading in that name, let me just read it in using a simple get line statement. ठीक हो गया. cin है और ये जो कुछ भी enter हो वो हम name के अंदर read कर लें. And as always, let me also write a cin ignore statement over here ताकि अगर कुछ previous stream के अंदर है तो वो ignore कर दिया जाए. So please, one thing that I noted was कि a lot of you you were writing your cin ignore statements, लेकिन आपकी जो ignore statements थी वो आपने अपनी cout statement के बाद लिखी हुई थी. See what happens is कि जब आप cin.ignore लिखते हैं, what it is doing is कि आपने जो कुछ भी stream में डाला है, it is going to empty it out, and ignore essentially means कि जो कुछ enter किया गया है उसको empty out कर दिया जाए या उसको remove कर दिया जाए. अगर आप अपनी cout statement के बाद लिखते हैं cin.ignore और उसके बाद आप तो खैर यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन सेंस में, लेकिन पॉइंट इज के इफ आई पुट इट ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज कि आप जब cin करना चाह रहे होते हैं तो तब उसको भी इग्नोर किया जा रहा होता है. ठीक है. सो व्हाट जनरली इज गुड प्रैक्टिस इज कि आप अपनी cout स्टेटमेंट से पहले लिखें अपनी इग्नोर स्टेटमेंट ताकि जो कुछ भी प्रीवियस स्ट्रीम से लेफ्ट ओवर था वो एम्प्टी आउट हो जाए, वो क्लियर आउट हो जाए स्ट्रीम, और उसके बाद आप जो है वो सिंपली अपना गेट लाइन के थ्रू इनपुट ले लें. ठीक हो गया. So this is the very short सी class जो हमने लिखनी थी for class B. So now let us move on to our main function and what we are exactly trying to achieve. ये reverse हो गया. Yes. So इसके अंदर I want to create a situation जहाँ पे I want कि मैं user से input लूँ कि वो किस तरह का object create करना चाहता है. तो एक जो तरीका होता है इसके लिए completely blind हम program को नहीं छोड़ सकते. ठीक है. So if I want the program to choose between two different type of classes, I will need to let the program
first know कि इसके अंदर कितनी type of classes exist करती हैं. So what that means is कि if I want to do something like that, what I first need to do is create pointers of every type of object जो इस program के अंदर बन सकता है. ठीक है, तो वो A है और वो साथ में B है. So अब pointers जो मैं बनाने हैं obviously क्योंकि जब हम memory allocation कर रहे हैं through pointers को भी data type define करना जरूरी होती है. हम completely blind नहीं छोड़ सकते. So that means कि I cannot have a simple, let's say, integer type pointer which points to an object, right? So I need an object type pointer जो किसी object को point करेगा और उसकी type मुझे पहले से define करनी होगी. ठीक हो गया? So in fact, what I can next have is, let's say I have a choice type integer मैंने declare किया है and I write a cout statement, let's say, which says which object do you want to create. ठीक हो गया. और इसके अंदर हम यूजर को लेट्स से ऑप्शंस दे देते हैं विच सेज लेट्स से एंटर करना है 1 फॉर ए या फिर 2 फॉर बी. ठीक हो गया. तो बेसिकली यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो एंटर करेगा आप उससे रीड कर लें और फिर उसकी चॉइस को हम मैच कर लेंगे. सो ये जो भी उसने चॉइस की वो मैंने एक cn स्टेटमेंट के थ्रू चॉइस के अंदर रीड कर लिया. अब what I can do is I can, क्योंकि मेरे पास सिंपल दो क्लासेस हैं, तो what I could have done, I can simply use an if else statement, या फिर हम क्या कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा है, we can use a simple switch statement. ठीक हो गया. और switch मैं किस चीज पे अप्लाई कर रही हूँ, अपने choice वाले वेरिएबल के ऊपर. तो choice वेरिएबल के ऊपर I am going to apply my switch statement. और switch statements के अंदर हम क्या करते हैं, हम different cases present करते हैं. तो केस 1 क्या है कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो क्या करना चाहिए. तो व्हाट वी कैन हैव हियर इज कि लेट 1 का हमने चॉइस दी थी कि इफ द यूजर एंटर्स 1 आई शुड क्रिएट एन ए टाइप ऑब्जेक्ट इन माय प्रोग्राम. ठीक हो गया. सो हम इसके अंदर ये कर सकते हैं. और ए टाइप के लिए अगर क्रिएशन है तो मैं पहले ही एक ए टाइप ऑफ पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर चुकी हूँ. राइट. सो आई कैन हैव a underscore ptr. And what I can do is use my new operator जो हमने previous lecture के अंदर देखा था and assign it a new a type object. और a type object जब assign किया है तो हम obviously क्योंकि मैंने इसको कोई value pass नहीं किया तो ये क्या होगा, ये एक default constructor जो है वो call हो जाएगा. So a single object of type A has now been assigned to my a underscore ptr pointer जो कि पहले ही type A type pointer था. right. क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इस पॉइंटर की टाइप क्या है, ए टाइप है. ठीक हो गया. सो नाउ पहले इस केस के अंदर जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी तो मैंने सिंपली एक पॉइंटर क्रिएट किया था जो कहीं भी एज सच पॉइंट नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी. और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है तो मैंने इसको अपने स्टैक के ऊपर एक नया ए टाइप ऑब्जेक्ट के स्टार्ट के ऊपर पॉइंट करवा दिया. राइट. सो नाउ as we saw in the previous lecture we can use this pointer to access the functions जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं. राइट. जो मैंने a क्लास के अंदर लिखे हुए हैं because now I have an object जिसको a ptr पॉइंट कर रहा है and I can access the function. So I can call the setup function. ये क्या करेगा, ये a के लिए कोई integer input जो था वो यूजर से input कर लेगा. Similarly what I can have is I can also access the display function जो मैंने इसके अंदर लिखा था. राइट. So once I have my display function, that is what is that going to do? That is simply going to display जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि a के अंदर जो integer है उसकी value ये है. So let me just close my case statement here. लेकिन एक जो बहुत जरूरी चीज होती है जो हम अक्सर choice वाली situations के अंदर use करते हैं is the keyword break. क्यों? अब हम ये कह चाहते हैं कि जब वो इस switch statement के अंदर enter हो और वो देखे कि choice जो है आपने choice equal to 1 enter की है, so it should enter these statements, यानी इस ब्रैकेट के अंदर एंटर हो जाए, ये तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे. and because I do not want it to proceed with the rest of the statements, what I write here is a break statement. So what is it going to do? यहाँ आएगा तो इस switch statement से बाहर एग्जिट कर जाएगा. right. so secondly हमारे पास ये हमारी switch का ब्रैकेट है. I also have another case जहाँ पे यूजर ने इनफैक्ट एंटर किया होगा केस 2. तो केस 2 के केस के अंदर हमने क्या करना है, हमने इनफैक्ट अपने बी पॉइंटर जो हमने क्रिएट किया है, बी पॉइंटर के थ्रू हमने एक न्यू
अब बी टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सो अगेन दिस इज द सेम थिंग एज बिफोर एंड इन फैक्ट आई कैन सिंपली कॉपी ऑल ऑफ दिस हियर एंड चेंज इट कि अब मैं इस बी पॉइंटर को सेटअप भी करना चाह रही हूँ और मैं साथ साथ इस बी पॉइंटर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले भी करना चाह रही हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू बी एबल टू ब्रेक आफ्टर दीज टू स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। ऑलराइट, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने यूजर से पूछा है कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है, उसको हमने यूजर इनपुट लिया है और उस इनपुट के ऊपर हमने केस स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंट केसेस प्रेजेंट करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच केस इट शुड ब्रेक आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एंड इवेंचुअली बेसिकली एंड द प्रोग्राम. So to run the program, I've shifted to this online C++ compiler. वो वाला wasn't working right now. All right. So and I've fixed a few errors जो syntax errors. So ठीक हो गया. So it's the same thing, same code है. इसमें सिर्फ थोड़ी सी changes है, right? All right. So इसके अंदर अब let's see if we run it, right? All right. So it's asking what object do you want to create. So let's say I want to create an A-type object. So the A-type constructor was called object of class A, only has an integer data member. This tells me कि इन्होंने इसका default constructor को call किया. And I can simply enter any value for A. Let's say I have 23 और integer value of class A 23 यानी display function call हुआ और ये आपका program जो है वो exit हो गया. Similarly, if I want to instead create something from class B, I can choose to create that. I have two, and let's say now it is saying B object only has string data member type. So again the B class ka jo default constructor hai that has been called, and I can simply enter any string. Let's say it's hello, and string class of B जो है string of class B was called, and you have your display as hello. So again ये मैंने बहुत basic programs लिखे हैं, but what essentially this display जो हम करना चाह रहे थे वो ये बात थी, डेमोन्स्ट्रेट जो हम बात करना चाह रहे थे कि हम बेसिकली इस तरीके से यूजर्स से इनपुट ले सकते हैं और उसके मुताबिक न्यू ऑपरेटर यूज करते हुए हम पॉइंटर्स को मेमोरी जो है वो असाइन कर सकते हैं. तो प्लीज नोट एक बहुत जरूरी बात यह है कि यहाँ पे मैं इस तरह नहीं कर सकती थी कि मैं सिर्फ एक ए टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करती विदाउट यूजिंग पॉइंटर्स. लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर ना यूज करूं और सिंपली यहाँ पे लेट्स से कुछ इस तरह का काम करना चाहूँ जहाँ पे मैं ए टाइप लेट्स से ए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करती, राइट, एंड देन आई कॉल्ड ऑल ऑफ दीज फंक्शंस. इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है. एक तो कुछ वर्जन्स ऑफ जो प्रोग्राम वर्जन्स ऑफ C++ आपको ये करने नहीं देंगे, और अगर करने भी देते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस तरह का काम करती हूँ this will only exist inside this switch statement, right? क्योंकि मैंने एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इनसाइड अ स्विच स्टेटमेंट, दिस ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट. यानी कि जैसे ही आप इस स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जिट करते तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, राइट? एंड जनरली अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वी डू नॉट वांट देम टू एंड अंटिल एंड जैसे ही स्विच जो है वो आपका एंड होता है, राइट? लेकिन बाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो इंस्टेड कि मैं यहाँ पे क्रिएट करती ऑब्जेक्ट, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है, वो पॉइंटर मैंने बिफोर दिस स्विच लूप क्रिएट कर लिया और इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने उस पॉइंटर को जाके एक नई लोकेशन के ऊपर पॉइंट करवा दिया. सो अगेन पॉइंटर्स जो हैं हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी सेव करवा रहे होते हैं. दिस इज एन इरिवर्सिबल एक्शन, राइट? यानी जब मैंने एक दफा पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया तो इवन व्हेन दिस स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इसकी खत्म हो जाती है वो पॉइंटर अभी भी वहीं पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? सो इनफैक्ट जब हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं आप उसको आउटसाइड ऑफ दिस लूप स्टेटमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इफ आई वांट आई कैन स्टिल कॉल APTR and I can use it and access my let's say setup function. अगर मैं दोबारा कॉल करना चाहती हूँ I am still able to do it outside of my switch statement. ठीक हो गया? So generally ये हम अक्सर यूज करते हैं अगर मैंने let's say फाइल हैंडलिंग आपने थोड़ा बहुत पिछली दफा देखा होगा अपने फर्स्ट कोर्स ऑफ CP के अंदर.
कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है, लेट्स से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कराए हैं और मैं उसको फाइल पे लिख रही हूँ, तो देन अक्सर हम इस तरीके से करते हैं जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट्स यूज कर लेते हैं एंड आई सिंपली create the different objects that I want to create and then I write them to the file. ठीक हो गया? So this was a very basic type of code practice. Do try your own codes. आप different तरीके से even जो आपकी task 2 है उसके ऊपर लगा के देखें इस ये approach के through आपसे create किए जाते हैं या नहीं किए जाते, right? So generally this is a good way to take user input when it comes to choice between different type of objects that you want to create. ठीक हो गया? So again, as always, if you have any questions, do please post on Google Classroom or you can post it on the WhatsApp group and I'll take a look at it. ठीक हो गया? So I think हम यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर, राइट? थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.